مسیح کے بابرکت نام میں سب کو سلام۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں، خدا نے پھر ہمیں آج کا یہ دن دیا اور یہ وقت دے دیا تاکہ ہم اس کی پاک حضوری میں آئیں، اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کے نام کو مبارک کہیں۔ اس کا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس نام کو اونچا کریں اور اس کے نام کی ستائش کریں، کیونکہ واحد وہ نام ہے، واحد یسوع نام ہے جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جس کو مبارک کہتے ہیں، جس کی ساری نعمتیں برکتیں دی ہوئی ہیں، اور جو اول ہے اور جو آخر ہے اور جو ابتدا ہے اور جو انتہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور میرے بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ ہاللیلویہ کو ماننے والے ہاللیلویہ اس خدا کے لیے زوردار آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے سیکھیں گے۔ اس کا مقدس کلام جو سونے سے مہنگا ہے، جو شہد سے میٹھا ہے، جب بھی ہم اس کو سنیں، اس کو ہم سونے سے، چاندی سے، دولت سے زیادہ عزیز رکھ کر اپنی زندگی میں اس کو سنبھالے رکھیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ تو آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے سیکھیں گے محبت کے بارے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی محبت ہے کہ اس نے آسمان کو چھوڑا اور زمین پر میری خاطر اور آپ کی خاطر آ گیا ہے۔ تو آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے نیا عہد نامہ اور پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 13واں باب، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ جتنے لوگ بائبل مقدس لے کر آئے ہیں ضرور میرے ساتھ اس حوالے کو نکالیں۔ ہم پڑھیں گے خدا کے مقدس کلام میں یہ لکھا ہے، پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جانچ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت پڑھے میرے ساتھ، محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی نہیں، نہ زیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام۔ خدا کے مقدس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ آج ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے محبت کے بارے میں پڑھا ہے۔ خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جانچ ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ محبت جو ہے وہ کیا کرتی ہے۔ ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھا، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، محبت سب کچھ برداشت کرتی ہے، اور ہمارے یسوع نے ہماری خاطر سب کچھ برداشت کیا یا نہیں کیا، اور اس نے ہمیں نمونہ دیا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے بہت سے دکھ میری خاطر، آپ کی خاطر سہے، اور بائبل مقدس میں بہت سے ایسے کردار ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے حوالہ سے تو ہمیں بہت ساری ایک امید ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک خدا کا بہت بڑا خادم گزرا، جیسے ہم کہتے ہیں ابراہیم کا خدا،
इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। याकूब खुदा से मोहब्बत करता था, खुदा से प्यार करता था। और ऐसा हुआ कि जब वो अपने मामू लाबन के घर गया तो उसकी दो बेटियां थी, एक का नाम लिया और दूसरी का नाम राहेल था। लिया बड़ी थी और राहेल छोटी थी। आज की मोहब्बत देखेंगे और उस जमाना की मोहब्बत देखेंगे। आजकल हम देखते हैं अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी कर लेते हैं, तो वो मोहब्बत सिर्फ 1 साल तक चलती है ना। बाद में वही लड़ाइयां झगड़े और लड़की कहती है मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती। याकूब अपने मामू की छोटी बेटी को पसंद करने लगा और उसने अपने मामू से कहा कि मेरी शादी जो है वो राहेल से कर दे। और मामू कहता है ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। उसने कहा ठीक है, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ राहेल से और मैंने क्या करना है, जो मेरी मोहब्बत में कुर्बानी मुझे देनी पड़ेगी मैंने वो देनी है। क्या हुआ, उसने कहा, उसके मामू ने कहा कि तू क्या कर, 7 साल मेरी भेड़ें चरा। वो कहता ठीक है मैं अपनी मोहब्बत के लिए ये कर सकता हूँ। तो उसने किया। एक दिन जब 7 साल पूरे हो गए तो उसने कहा अब 7 साल पूरे हो गए मामू, अब मेरी उजरत मुझको दे दे। उसने कहा ठीक है। और जब शादी का वक्त आया, खुदा के कलाम में लिखा कि उसके मामू ने ज़ियाफत की और उसकी शादी जो है वो लिया से कर दी। और जब एक टाइम आया कि उसने उसका घूंघट उठाया तो वो परेशान हो गया। वो कहता बाजी आप कहाँ से आ गए, क्योंकि वो बड़ी थी और वो बाजी कहता होगा उसको, है ना, क्योंकि वो उसकी बाजी थी, बड़ी थी, राहेल छोटी थी। तो वो परेशान हो गया। उसने कहा नहीं, भागा अपने मामू के पास, मामू ये क्या किया। उसने कहा हमारे ये रिवाज नहीं है कि छोटी बेटी की पहले शादी की जाए, पहले हम क्या करेंगे बड़ी बेटी की शादी करते हैं फिर हम छोटी की करते हैं। तो तू क्या कर, 7 साल और भेड़ें चरा। तो वो परेशान हो गया, मैं नहीं कर सकता। नहीं, उसने कहा ठीक है मैं अपनी मोहब्बत के लिए क्या करूंगा, कुर्बानी दूंगा। ये असल में मोहब्बत की खूबी आपको बता रही हूँ कि मोहब्बत जो है वो सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है। अगर आजकल की मोहब्बत होती तो कहती नहीं बस 2 साल ठीक है, 7 गुजर गए हैं, बस अब कोई और ढूंढते हैं। क्योंकि खुदा याकूब के साथ था, खुदा उसको काम में दिखाई देता था, खुदा उसको बरकतें देने वाला था और वो खुदा से मोहब्बत करता था। और उसने कहा ठीक है मामू मैं 7 साल और भेड़ें चराऊंगा। कितने साल हो गए, 14 साल उसने एक लड़की के लिए भेड़ें चराई, अपनी मोहब्बत के लिए भेड़ें चराई, सब कुछ सहा, सब कुछ बर्दाश्त किया और आखिरकार राहेल से उसकी शादी हो गई और उसकी बरकतें जो है वो बढ़ती गई क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। वो साबर था, याकूब साबर था और याकूब खुदा से मोहब्बत करने वाला था और वो बर्दाश्त करने वाला था, उसके अंदर तहम्मुल था। हम बहुत सारे बेटे बेटियों को मैं देखती हूँ करते हैं शादियां पसंद की, लेकिन थोड़ी देर वो चलती है ना। अरेंज मैरिज में फिर भी बहुत सा एक सब्र होता है और बहुत सी उनके पास बरकतें होती हैं। और लव मैरिज में मैं अक्सर देखती हूँ कि 2 साल गुजरते कहते अब हमने तलाक ही ले लेते, हमारा गुजारा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुदा की तरफ से मोहब्बत नहीं होती, वो दुनियादारी की मोहब्बत होती है। और जो खुदा की मोहब्बत होती है, खुदा के कलाम में लिखा है जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। और जब खुदा इससे जोड़ता है तो फिर उनको कोई भी जुदा नहीं कर सकता। और जो इब्लीस के जुड़े होते हैं वो अक्सर जल्दी से जुदा हो जाते हैं। और याकूब ने क्या किया, 14 साल भेड़ें चराई, किसके लिए, राहेल के लिए। बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा, लेकिन खुदा उसके साथ था, खुदा उसका मुहाफ़िज़ था, खुदा ने उसको सब्र भी दिया, खुदा ने उसको तहम्मुल भी दिया, खुदा ने उसके अंदर सब कुछ सहने की उसको कुव्वत भी बख्शी, ताकत भी बख्शी। अगर हम यीशु से मोहब्बत करते हैं
तो हमने सब कुछ सहना है, सब कुछ सहना है, उसकी ताबेदारी में रहना है, अपने बड़ों की इज्जत, ताबेदारी, फरमाबरदारी करनी है। खुदा के कलाम में लिखा, अपने माँ बाप की इज्जत कर, फिर तेरा क्या होगा? भला होगा, और तेरी उम्र भी दराज होगी, पूरी उम्र तुझे मिलेगी। कितनी बड़ी बरकत है। हम आधी उम्र में इस दुनिया से नहीं जाएंगे, पूरी उम्र में जाएंगे। कब? जब हमारे अंदर ताबेदारी और फरमाबरदारी होगी, हमारे अंदर सब्र होगा, हमारे अंदर तहम्मुल होगा। याकूब की तरह याकूब ने बहुत कुछ सहा, और एक दिन आया कि उसके पास बहुत सारी बरकत बढ़ गई। उसके पास बीवियां, नौकर चाकर, बेड़े, बहुत कुछ था। और उसने अपने मामू से कहा कि आप मुझे मेरे बाप के घर रुखसत कर दे, मैं वापस चला जा। तो वो कहता है, तू यहाँ से ना जा, तेरी वजह से मुझे भी बरकत मिल गई है। जब हम बरकत लोग होते हैं, हमारे वसीला से हमारे घराने को बरकत मिलती है, हमारे बच्चों को बरकत मिलती है, हमारे मोहल्ले को बरकत मिलती है, हमारा शहर सरफराजी पाता है। कब? जब हम खुद बाबरकत लोग होते हैं। तो उसके मामू ने कहा, तू ना जा, तेरी वजह से मुझे भी बरकत मिली हुई है, तू ना जा मुझे छोड़ के। उसने वो कहता नहीं, मैंने जाना है, जो मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दे। तो उसने कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुझे दे दूंगा। आइंदा साल में जब भेड़े बकरियां बच्चे देंगी ना, तो फिर हम आधे आधे कर लेंगे। जो चितरे मितरे बच्चे होंगे वो तेरे होंगे, और जो सादा होंगे वो मेरे। इससे पता था कि ज्यादा भेड़ बकरियां सादे से बच्चे होते हैं, चितरे मितरे कम होते हैं। तो याकूब क्या करता है, क्योंकि खुदा उसके साथ है। सीखने की बात कि जब खुदा हमारे साथ है तो खुदा नामुमकिन को भी मुमकिन कर देता है। और वो भेड़े चराने गया, और खुदा की कलाम में लिखा, वो क्या करता, दरख्तों से वो छिलके से उतारता और भेड़ों के आगे रखता, बकरियों के आगे रखता, और वो उनको देखती और खाती। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब भेड़ों ने और बकरियों ने बच्चे दिए तो सारे चितरे मितरे। हालेलुया! क्योंकि खुदा उसके साथ, खुदा उसका मुहाफ़िज़ था, खुदा उसके साथ कभी भी गलत होने नहीं देगा, क्योंकि उसका भरोसा कहाँ था? खुदा पर। उसकी मोहब्बत ठीक थी, उसकी ताबेदारी ठीक थी, उसकी फरमाबरदारी ठीक थी। और हो नहीं सकता कि जब हम मोहब्बत में, वफादारी में, ताबेदारी में कामिल हो तो हमारे साथ गलत हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। हम में कमियां होती हैं, हम मोहब्बत में भी कम होते हैं, हमारे अंदर गरूर भी होता है, घमंड भी होता है कभी कभी कि हम ऐसा करें, हम नहीं ऐसा कर सकते, हम नहीं सह सकते, हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। तो याकूब ने बहुत साल अपने ससुराल में उनकी क्या की? खिदमत की, और उसकी खिदमत का सिला उसको बहुत बरकत में मिला। खुदा ने उसको बहुत सारी बरकतें दी। और एक बरकत, जब वो वहां जा रहा था, खुदा के कलाम लिखा, खुदा ने उसका नाम भी बदल दिया। खुदा ने कहा, आज के बाद तू याकूब नहीं बल्कि क्या होगा? इस्राएल होगा। खुदा ने उसको इतनी बरकत दी थी। कब? जब उसने मोहब्बत में, ताबेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उसके बाद हमारी यीशु की बात आ जाती है कि हम उसकी दुल्हन हैं, जो हमारा दुल्हा है, वो हमें लेने आ रहा है। कितने साल हो गए हम उसके साथ वफादार हैं। कभी ये हमने सोचा है? हम बहुत सीधे मनाते हैं या हम संडे मनाते हैं तो हमारी मोहब्बत घटती है या बढ़ती जाती है खुदा के साथ? याकूब की मोहब्बत बढ़ती गई, कम नहीं हुई। उसको खुदा ने बरकतें भी बहुत। जितने लोग खुदा के साथ वफादार, जितनी वफादारी उतनी बरकत, जितनी ज्यादा आजमाइश उतनी आगे बरकत। अक्सर मैं बताती हूँ कि अगर बियाबान में से जब हम गुजर जाते हैं तो आगे क्या है? बरकत है। इसलिए मेरे अजीजों, मोहब्बत में, ताबेदारी में बढ़ते जाना। खुदा की कलाम में लिखा, मोहब्बत सब कुछ इससे सब कुछ सहा या नहीं? और हमारे यीशु ने भी मोहब्बत करके सब कुछ सहा। उसके मुंह पर थूका गया, उसके हाथ और पांव छेदे गए, पसली में नेजा मारा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, वो प्यासा रहा,
हमने पढ़ा मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हो तो मकूफ हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, लेकिन अगर हम मोहब्बत में कामिल बनते जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सी बरकतें रखी हुई हैं। जैसे यकूब के पास बहुत सारी बरकत आ गई, खुदा उसकी रहनुमाई करता गया और यहाँ तक कि वो शुमार में अपने मामू लाबन से भी बढ़ गया, उससे भी ज्यादा उसके पास बरकत है। कब? क्यों? इसका जवाब मिलता है मोहब्बत। उसने असल में असली मोहब्बत की थी। आजकल की मोहब्बत नहीं, जैसे हम दिखावे की लोग मोहब्बत करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, होते कैसे हैं, लेकिन वो ऐसा वो लगा लेते हैं मोबाइल पे कि वो पहचाने नहीं जाते कि ये वो है ना। ऐसे चेहरों के ऊपर चेहरे बनाए जाते हैं कि उनकी पहचान ही खो जाती है। ऐसी मोहब्बत नहीं करनी जैसी मोहब्बत यीशु ने हमसे की। उसने जान देकर हमें मोहब्बत का सबूत दिया। कुरान की कलाम में लिखा कोई ऐसी मोहब्बत नहीं करता जैसी मोहब्बत यीशु ने हमसे की। अपना इकलौता बेटा, खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमारे खातिर बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसकी मोहब्बत को आज देखिए, अगर हम इतने वफादार हैं जैसे यकूब रहा, जैसे इब्राहिम रहा, जैसे इसहाक रहा, तो खुदा की शुक्रगुजारी है। ऐसी मोहब्बत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने मोहब्बत के बारे में पढ़ा है कि अगर हम अपना सारा माल गरीबों को दे दें, अपना बदन जलाने को दे दें, अगर मोहब्बत ना रखें तो हमें कुछ भी फायदा नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, खुदावंद से ऐसी मोहब्बत करनी शुरू कर दें जैसी मोहब्बत उसने हमसे की है। आज सोचिए, अगर ऐसी मोहब्बत करते हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी है। अगर हमारी मोहब्बत में कमी, इसका मतलब हमारी बरकतें रुकी हुई हैं, क्योंकि खुदा की कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार है, फिर तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। उसने 14 साल अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बानी दी, ऐसे ही ना, तो क्या उसको मिली? और उसको बहुत सी साथ बरकतें मिली। जब हम अपनी बरकतों का इंतजार करते हैं, बढ़ते जाते हैं, खुदा में मजबूत होते जाते हैं, तो यकीनन हम बरकत के वारिस बन जाएंगे। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम यकूब जैसी फरमाबरदारी और मोहब्बत कर सकें।